Okay, welcome back. But there's some more controversy now which is brewing because AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now stoked a huge controversy and he's making reference to showering of petals on the Kawadiyas, and he's asking this question that it's okay if you want to shower petals on the Kawadiyas, but then why do you run the bulldozers over the Muslims? In fact, we're going to try and play the soundbite out, but we also have Arunima who's now joining us. Arunima, obviously he's trying to cater to his constituency, but it's something which is certainly going to stoke a huge controversy. Yes, Asaduddin Owaisi in a series of tweets have questioned the Uttar Pradesh administration's decision to roll out the red carpet literally for the Kanwad Yatra. What he has said is, पुलिस ने पंखुड़ियां बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए. दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़िया नाराज ना हो जाए. उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्ते पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी. एंड देन देयर आर अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स इन व्हिच ही सेज ये रेवड़ी कल्चर नहीं है. रेवड़ी कल्चर इज एज इन फ्रीबीज इज व्हाट ही इज अक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडल्जिंग इन. दिस हैज बीन काउंटर्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी MPs. Jagdambika Pal, who spoke to our colleague Amit Pandey, said that we do the same when there is a Tazia procession that is taken out. It is just a question of taking care of the faith of people and showing the humane side of police. This should not be discussed on religious lines. Yes, but I won't use the word understand, but we know where he is coming from, because at the end of the day, he's been pretty angsty and angry and very vociferous in his criticism of wherever a bulldozer has been run by, by saying the fact that, you're only targeting these people because they happen to be Muslims and belong to a minority community. You think this kind of comment by Owaisi just adds on to the entire debate? What he's also doing, his second tweet is a parallel that he's drawing when, namazis get an FIR against them. He says, मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है. And I've already read out to you his earlier tweet about how he's saying how Kanwadiyas are being helped by the police, lotion being put on their tired legs. There is also helicopter in service to ensure petals are dropped from the air. And he's saying, while you're doing all this for the Kanwadiyas, even if namazis go and offer namaz at a public place, there is a huge uproar. So that is the comparison that he is drawing, trying to draw attention. He's of course addressing his own constituency. There is a constituency which feels the way Asaduddin Owaisi is tweeting out. But if you ask the ruling side, if you ask the BJP MPs, they say that it is unnecessary to bring in that comparison. Okay, yes. Many thanks, Arunima, for putting that into context. We also have the first political voice, Rakesh Tripathi from the BJP, now joining us. Rakesh जी, इसके पहले मैं कुछ और पूछूं. सबसे पहले आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं, आपको लगता है वो गलत है इस तरह का तुलना करना? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार कुख्यात हो रहे हैं बात के लिए कि वो जब भी अपनी जबान खोलते हैं तो जानबूझ करके ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो, और वो लगातार इस तरह की जबान प्रयोग करने का काम कर रहे हैं. अब कांवड़ यात्रियों पर अगर सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं तो ये सुविधाएं तो रोजा इफ्तार के समय भी दी जाती हैं, उनके सिर से दर्द नहीं होता है. इसको सांप्रदायिक आधार पर देखा जाना ये ठीक नहीं है. देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सांस्कृतिक विरासत से और रीति रिवाज परंपराओं से, व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई चीजों को संरक्षित करे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करे, और ये सुविधाएं सभी राज्यों की सरकारें प्रदान करने का काम करती है. इसमें किसी प्रकार का मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होता है. लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मजहबी आधार पर इसमें भेदभाव देख करके और इसको उद्धृत करके जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन उनके इन प्रयासों में उनको सफलता नहीं मिलेगी. उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी ऐसी ही तमाम बदजुबानी करने का काम किया था, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया. प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है. आज कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी जी का ये भी कहना है, राकेश जी, ओवैसी जी का ये भी कहना है कि जब सड़कों पे नमाज पढ़ा जाता है तब आप लोग आपत्ति करते हो कि ऐसे आप नहीं कर सकते, एक जगह है बनाई जाए वहाँ पे नमाज पढ़े. लेकिन जब कांवड़िया रोड पे चलते हैं, काफिला चलता है उनका, तो पुलिस भी रुक के उनको पैर में दवा लगाती है या लोशन लगाते हैं. तो ये अंतर क्यों? ये सवाल है ओवैसी जी का. नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. देखिए, जब ताजिया के जुलूस निकलते हैं या उर्स के मेले लगते हैं या इफ्तार की पार्टी होती है या बकरीद के कार्यक्रम होते हैं तो स्थान नियत किए जाते हैं और किसी प्रकार से सुविधाएं मुहैया कराने का काम करती है. तो कांवड़ यात्रा बिना अनुमति के नहीं हो रही है.
सरकार ने बाकायदा अनुमति दी है, इसके रूट तय किए हैं और उन रूट पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे ही जब ताजिया का जुलूस निकलता है तो उसके लिए भी रूट तय किया जाता है, उसमें भी व्यवस्थाएं की जाती है। इफ्तार की दावतें होती हैं तब भी उसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है, उसमें सरकारी धन खर्च किया जाता है। उसके मेले होते हैं उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। अब यात्रियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। इसलिए ये सारी बातें करना मुझे लगता है कि तर्कविहीन है, ये कुतर्क करने का काम है। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वो जनता के जो भावनाएं हैं, जो उनके बिलीफ है, उसका आदर करते हुए उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम करे, और सरकार ने यही किया है। Okay, thank you very much, Rakesh ji. Well, Owaisi certainly has stoked a huge storm early in the morning. We're going to wait for more reactions through the day. But for now, we have a reaction coming in from the BJP MP, Rajendra Agarwal. Let's listen in to him. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप मेरठ से ताल्लुक रखते हैं और आपके ही रीजन में फूल बरसाए गए थे, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को ओवैसी? नहीं, देखिए, ये धर्म की बात नहीं है, कोई उस नाते इस घटना को नहीं देखा जाना चाहिए। एक जन आस्था का इतना बड़ा एक स्वरूप है ये, यानी लाखों कांवड़िए रोज निकलते हैं, विभिन्न प्रदेशों से वहाँ पर हरिद्वार पहुँचते हैं, वहाँ से जल लेते हैं और कुल मिलाकर के इनकी संख्या करोड़ों में पहुँच जाती है। तो एक जनास्था का सम्मान है और जनास्था के इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम अन्य जो रिलीजन से जुड़े हुए लोग भी उनके विषय में भी होते रहे हैं और इसलिए इसको केवल धार्मिक आधार पर नहीं देखना चाहिए, सामान्य जन से जोड़ करके देखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और भी दूरस्थ स्थानों से वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और बड़ी एक प्रकार की तपस्या से करते हुए वो अपने गाँवों को जल लेकर के जाते हैं, पैदल जाते हैं और अपने जो गांव का जो शिवालय है वहाँ पर शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं। Okay, so that was Mr. Rajendra Agarwal. His first reaction, the BJP says that this is absolutely a wrong comparison to make by Owaisi, because even in the case of Muharram, when taziyas go across the roadway is made for them, they are facilitated. Just to do a recap before I go across to my colleague Arunima to get her thoughts on it and what could be the political reactions, what Owaisi in a series of tweets has made an objection to the fact that during the Kanwariya Yatra, which we have been seeing in the last few days, flowers have been showered on them. Petals have been showered on them. In some cases, you know, special enclosures have been made for them. Also, for that matter, that, you know, we also have Delhi police. We also have other people applying lotion and medicines for them. It's a matter of faith is what the BJP is saying. And one should not make these kind of comments as far as the matter of faith. Before I go across to Arunima, we also have a first reaction coming in from yet another BJP MP, Jagdambika Pal. Let's listen in to him. सर, इस पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, लेकिन जब लोहारों को हटाया जा रहा है, अगर कावड़िए मुस्लिम का नाम भी लेते हैं तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। देखिए, जब ताजिया निकलती है, जब उनके भी त्यौहार होते हैं, तो प्रशासन और सरकार उसमें भी इंतजाम करती है, उसमें भी करती है। तो अगर आज कांवड़िया निकल रही है, जो पैदल लोग चल रहे हैं, उनका एक आस्था, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मनिरपेक्ष लोग जो हैं उनका सरकार सम्मान करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में उन कांवड़ियों पे जो पैदल चल रहे हैं, सीखे भरते हैं, उन पर स्पर्धा की जा रही है। लेकिन भेदभाव की बात ओवैसी कह रहे हैं। कहीं भेदभाव नहीं, मैंने कहा ना कि जब ताजिया निकलता है तो रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है। ईद का त्यौहार होता है, ईद का त्यौहार होता है, उन त्यौहारों में जितना प्रशासन और शासन होता है उसकी मदद करता है।